So, yes, okay. So, welcome our guest, Mr. Inder Singh. So, Inder, please talk You about your, tell us how you started अभी तक कैसे कैसे बचपन से या जैसे भी प्लीज okay? Okay. Today, so I'll give you the overview in detail. First of all, I would like to sir that Anju should give some little bit of about Gigai. Then I'll start in very detail one by one. So Anju, are you there? Can I do sir? yes yes Anshu please Yes, Okay, yes. so I will. Good evening. Uh, Is my voice clear? Actually, I'm traveling right now. I hope this won't yes yes be you're a clear problem. Okay, okay, fine. So I'll just introduce Gigai and what is actually the goals of Gigai. Only that much I'm going to share with all of you, and the rest of the thing will be shared by Mr. In the. Okay, so Gigai is actually an Indian technology reinventing learning era, and that was founded in 2014 by engineer uncle, that is Inder Singh. Now the founder of Gigai, uh, uh, the founder of Gigai actually introduces the world with the learning revolution. So it is a platform that is developed for the students and the schools to make learning QEE. Actually, it means quick, efficient, and effective. Okay, so this is the motive so that the student can actually lead the world, and they can be fluent with all of their studies and all the subjects. So the subjects which are actually included are history, mathematics, physics, chemistry, English, and there are many other things which can be included as well. Like spoken English is also there, and it also deals with all kind of competitive exams. If anyone wants to prepare those, they can be adjusted in the learning machine. And now I'll talk about the goals. So the first goal is actually I've already said about it. It makes the learning quick, efficient, and effective. That is QEE. This is in Hindi we can say it's a mantra for Gigai. And the second one is best academic performance. That is inside and outside classroom. Okay, it's nothing like only inside the classroom. Uh, the students are running after scores. It's nothing like that. The students will also be efficient in their other goals as well, which will they prepare for. And the third one is active recall. Actually, active recall means reviewing one's own memory. Actually, we have always seen that students are, or even we are facing problems to review something, to remember or to recall something we have already heard in our past. But with this machine, there will be a neuron correction, and that will be explained in detail by in the. So I'm not going in deep in this. So I'll go to the next point, that is continuous learning. That means learning new skills in an ongoing basis. So there will be no break. Like students don't touch books for a long time, and they do only before exams just for scores. And in this thing, they will be learning in the whole process every time, every moment they are in their room. Okay. Now next point is self confidence. That means after installation of the machine in the room of the student, the student will get familiar with the topics that will be discussed in the school or in any other places. They will get familiar to the topics. That means whenever they will be asked to say something about it, when it's just being taught, they will be able to answer it immediately. Students never thinks about the future in the beginning. When someone asks them that what are you going to deal in the future, they are saying several things. So they will be particular with their goals. That is the first thing, and they will be preparing the competitive exams from the
from an early time. That means the machine will be helping the student, the user, to be quite good in their academic, in their competitive exams. So yeah, that's all about the goals of this machine, and I can't explain it in such a short time. So which So competitive exam? All competitive exams yeah, or all specific kind, yeah. ones? No, all of ऐसे तो them. बहुत All सारे of, competitive exam है फिर yes, हजारों हाँ में हाँ. होगा. Yeah, actually there are All are many. in It is mentioned in the website. We have it in detail in the website. You can go through that. we will have a Uh, look about that. Yeah. yeah, we can discuss it later. So I'm like, I'll switch We'll over discuss to it. in Sure, the sure. right now. Thank you so Yeah. much. Yeah, thank you Anshu for being with us. और सर मैं तो हिंदी में कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक बाकी है सबको ठीक है समझ में आया, लेकिन पता चला कुछ समझ में ही नहीं आया. ठीक है, एक्चुअली हिंदी स्टार्ट इंग्लिश करते हैं जो भी चलेगा. स्टार्टिंग से. हाँ हाँ, क्योंकि टाइम है अपने पास, और मेन चीज है कि अभी इनोवेशन पर है, तो इस स्टार्टअप को अच्छे से समझा जाए. और लैंग्वेज तो कभी फोकस करेंगे. बहुत सारे क्लासेस अब चलते रहता है 8 PM एट एवरी लर्निंग व्हाइल ट्रैवलिंग. सर एवरीबॉडी नोज हियर, सब जानते हैं ना? मुझे, हाँ हाँ मुझे जानता है. ओके. नहीं नहीं, मतलब 8 बजे से जो स्पोकन का क्लासेस वगैरह चलते रहते हैं. बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा मोड़ा जानते हैं. ओके ओके, ठीक है सर. तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी जितने भी गेस्ट एंड स्टूडेंट्स हैं, वो लोग कहीं ना कहीं स्टार्टअप में इंटरेस्टेड हैं. एंड जो स्टार्टअप में इंटरेस्टेड नहीं भी है, वो इंग्लिश में, आई मीन सॉरी, बिजनेस में तो है ही इंटरेस्टेड. सो पहले तो मैं बिजनेस मॉडल किस तरीके से है, फिर बाद में बताऊंगा कि प्रोडक्ट क्या है और कंपनी क्या है. ये बिजनेस मॉडल किस तरह का है और क्या है क्या नहीं. तो इसका एक्चुअली पहले डिस्कनेक्ट हो गया. ओके, हेलो, हाँ अभी ठीक है. आई थिंक मैं मे बी डिस्कनेक्ट हो वीडियो गया. ऑफ ही रखो, बैंडविड्थ हाँ तुम्हारा खा जा रहा है. ओके, एक बार चालू रखता हूँ, फिर बंद हुआ तो बंद कर दूंगा, ठीक है? हेलो सर, एम ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल. ओके, यस बैंडविड्थ आई थिंक सही नहीं है. तो व्हाट इज दिस मीटिंग? यस. अब ठीक है, अब ठीक है सर? हाँ ठीक है ठीक है. ठीक है. तो एक्चुअली स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग से. पहले एक मेरा ये एक प्रोडक्ट था, ग्रीटिंग सिस्टम. तो उसमें क्या है कि जब भी हम गेट पे इंस्टॉल, लाइक बिग बाजार, बड़े बड़े जो भी ऑफिस वगैरह हैं, आउटलेटेड फेमस ब्रांडिंग वगैरह, तो जैसे ही हम इन करते हैं, लाइक अगर बिग बाजार में इंस्टॉल किया है तो वेलकम टू बिग बाजार. वापस अगर कस्टमर जाएंगे तो थैंक यू विजिट अगेन, और वो काउंट करेगा कितने लोग आए और कितने लोग गए, और किस आवर में किस टाइम ज़्यादा भीड़, ज़्यादा ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, और लाइक अगर वो डिस्काउंट वगैरह चलाते हैं, या किस सीजन में कितना सेल वगैरह रहता है, तो ये मॉनिटर कर सकते हैं. तो इसकी, ये बेसिकली मेरा पहला आइडिया था, तो इस पे काम कर रहा था. तो अभी डायरेक्टली तो बिग बाजार के पास जा नहीं सकता, कंपनी भी रजिस्टर्ड नहीं है, और ये जितने भी बड़े बड़े आउटलेट्स है, सबके हेडक्वार्टर है मुंबई में. या तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा, या फिर आपको बेंगलोर जाना पड़ेगा. कोलकाता में तो सबके रीजनल ऑफिस है, हेड ऑफिस है ही नहीं. तो डायरेक्टली किसी से बात भी नहीं कर सकते. तो फिर मेरे को छोटे छोटे आउटलेट वगैरह पे जाके बात करना पड़ा. तो वहाँ पे हुआ ये कि सब इंटरेस्टेड थे. कोई बोले कि ठीक है, इंस्टॉल करके बताओ और देखते हैं, फिर ये करेंगे. तो सीन ये था ना कि एक एक पर्टिकुलर छोटे छोटे, लाइक मतलब कि शॉप के ओनर शॉप में रहते ही नहीं है. लाइक कोई अगर ज्वेलरी शॉप है तो वो है ही नहीं, और जो डिसीजन मेकर्स है वो बाहर ही रहते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उनके पास जाना पड़ता है. तो सीन ये था कि काफी टाइम वेस्ट हो रहा था. स्टार्टअप में और बिजनेस में टाइम बहुत बड़ा एक पैरामीटर है. मेरी आवाज आ रही है? आ रही है ना सर? आ रही आ रही आ रही. हाँ ओके. तो फिर मैंने सोचा कि अब एक एक बंदे को ऐसे समझाना ये काफी टफ हो जाएगा. तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ पे टाइम मेरा इतना ही लगे लेकिन ज्यादा आउटपुट आ सके. तो फिर मैंने ये लर्निंग मशीन के इसके बारे में सोचा, और टेक्नोलॉजी उस टाइम लगभग सिमिलर थी, बट अभी तो पूरा टोटली चेंज है. अभी तो मतलब कि जमीन आसमान का फर्क है. तो फिर स्टार्ट किया लर्निंग मशीन. इसमें एक्चुअली क्या है ना,
कि एक स्कूल में ऑन एन एवरेज 3000 स्ट्रेंथ रहती है, 3000 बच्चे रहते हैं। और अभी जो कॉस्ट है इसकी, एक बार आप वेबसाइट ओपन कीजिए सर, सबके लिए दिखाई, थोड़ा वेबसाइट ओपन करिए। 1 minute. ओके, थोड़ा स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल डाउन करिए सर, स्क्रॉल डाउन करिए। हाँ, लर्निंग मशीन पे क्लिक कीजिए। तो जो बेसिकली प्राइस है लर्निंग मशीन का वो है 2500 रुपया, 2499। आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, लाइक 10th में हो, 12th में हो, क्लास 1 में हो, या फिर आप किसी कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन करें, तो ये आपको इसके अंदर इनबिल्ट मिल जाएगा। अगर आप क्लास 10th में हो तो क्लास 10th का जो भी सीबीएसई का है, आईसीएसई का पूरा सिलेबस है, ऑल सब्जेक्ट इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको एडिशनल प्रिपरेशन चाहिए, जो फ्यूचर प्रिपरेशन है, सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए, राइट साइड में देखिए अवेलेबल ऑप्शन है, थोड़ा राइट, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए। हाँ, ये देखिए, बस 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 यही पेज है, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, राइट, थोड़ा सा ऊपर करिए, थोड़ा सा ऊपर, बस 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 यहीं पे यहाँ पे देखिए, जैसे जेई मेंस एंड जेई एडवांस इंजीनियर के लिए बेसिकली लर्निंग मशीन का क्या है ना, कि अभी से अपना करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं आप किसी भी स्टैंडर्ड में। आपके अगर पेरेंट्स चाहें कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको लॉयर बनना है, आपको टीचर बनना है, ए टू जेड प्रोफेशन यहाँ पे लिस्टेड है, जो कि इंडिया में फेमस है, मोस्टली जो यूज होते हैं, लाइक होटल मैनेजमेंट में जाना है, कुछ भी सीएस वगैरह, तो वो सर आप एक बार पढ़ के यहाँ सुना दीजिएगा। तो अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, तो ये जो भी आपने जो लर्निंग मशीन पे क्लिक किया है, क्लास 10th के बच्चे के लिए है, तो 3 साल का कोर्स है, और कोर्स का फी है 41,000। तो इसी तरह ऑल सारे कोर्सेज हैं। और हाँ, तो जूम कर दीजिए सर राइट साइड में। हाँ, अब धीरे धीरे स्क्रॉल कर दीजिए। जैसे नीट का है, क्लास 3 मतलब 3 इयर्स के लिए, अब जो क्लास 1 में होगा जो बच्चा, उसके लिए 13 इयर्स का होगा, जो क्लास 9 में होगा उसके लिए 4 इयर्स का होगा, जो जो भी स्टैंडर्ड 8 में है उसके लिए ये 5 इयर्स का है, अगर जो क्लास 12th में है उसके लिए 1 ईयर का है। तो यहीं पे उनको लाइक अभी चार्टेड अकाउंटेंट है, सीएस है, लॉयर है, सी क्लेट है, जो भी फेमस एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स वगैरह है, एनसी एचएम जेई है, ये होटल मैनेजमेंट के लिए होता है, फिर कैट है, एमबीए के लिए होता है, और इसको डाउन कीजिए, एस्ट्रोनॉट वगैरह के लिए 8 इयर्स का है, साइंटिस्ट के लिए है, एनडीए डिफेंस के लिए, पीसीएस ये गवर्नमेंट स्टेट सर्विस वगैरह है, नीट प्रोफेसर के लिए, जज के जेएससी जज के लिए, उसके बाद ये बैंकिंग सेक्टर के लिए है, एसएससी के लिए है, एसएससी हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन लेवल, देन एनटीपीसी टोटल रेलवे, स्टेशन मास्टर, टीटी, एक्स एंड वाई ग्रुप, सोल्जर एंट्री इन एयरफोर्स, एक डबल एन एसएसआर इन इंडियन नेवी, एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स 100 रुपीज। देन कम टू सर, थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करिए, अभी ये है पॉकेट फ्रेंडली, मतलब कि जो जेई वाला कोर्स 1000 का था, वो यहाँ तो मान के चलते हैं लाइक 43,000, एक स्कूल में अगर 43,000 स्टूडेंट्स हैं, सर सुन पा रहे हैं, सब लोग सुन पा रहे हैं, सर सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। हाँ, तो 45,000, 43,000, 43,000 इंटू 3,000, आई थिंक कैलकुलेटर भी कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, कर लिया, कैलकुलेट किया, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इट्स 1 अरब 29 करोड़। मतलब एक स्कूल से इतना रेवेन्यू क्रिएट किया जा सकता है, अगर सभी बच्चे अगर लेते हैं लर्निंग मशीन को, 1 करोड़ 29 लाख एक स्कूल से। तो मैं मान के चलता हूँ इतना तो 45,000 तो नहीं ले पाएंगे, तो 6,000 ही पकड़ते हैं ऑन एन एवरेज। लाइक कुछ बच्चे 6,000 वाला ही लिए, कुछ मिडिल, मतलब एकदम पूरा डाउन पकड़ लेते हैं, मिनिमम 6,000 अगर सारे बच्चे लेते हैं, 3,000 6,000 का कोर्स अगर लेते हैं 3,000 बच्चे, तो ये होता है 1 करोड़ 80 लाख। इसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है 30 लाख का, पर प्रोडक्ट 1,000 का मैन्युफैक्चरिंग है, फिर भी 1,50,00,000 का प्रॉफिट है एक स्कूल से। ठीक है, अब मैं मानता हूँ कि इतना भी ना हो, 1% भी हो, खैर ये फ्यूचर की बात है कि
सक्सेसफुल है या नहीं है गीगाई। तो मेन चीज होता है ना एक आवाज आ रही है मेरी सबको? हेलो? या या तो एक्चुअली जो मेन चीज हाँ है, हाँ, रही है। सबको आवाज आ रही है। जी जी जी, जब आवाज main नहीं चीज- आएगी तो बोल देंगे, तो डिफॉल्ट ओके एज्यूम कर ओके लो आ रही है। ओके ओके। नहीं, अकेले बोलने की आदत नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है ना सर, आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। तो मतलब कि अभी बिजनेस आइडिया तो ठीक है कि इतना बड़ा रेवेन्यू मिल जाएगा एक स्कूल से। अभी कितने बच्चे लेते हैं, वो प्रोडक्ट पे कितना दम है, वो बाद में डिसाइड करते हैं, या कितने लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये बिजनेस मॉडल था मेनली कि चलो यहाँ पे एक स्कूल को कन्विंस करना है, पहले फाउंडर, स्कूल के फाउंडर को या चेयरमैन को इनसे बात करनी है, इनको प्रॉफिट दिखाना है। तो इसके लिए भी एक ऑप्शन मैंने डाल रखा है सबसे नीचे, स्कूल नोट बोल के। तो जो स्कूल नोट के लिए जो भी होगा ना, है तो वो 500 इंटू 3000, ये भी करीब 15 लाख हो जाता है। एक स्कूल में 15 लाख एनुअली कमाना ये बहुत ही टफ बात होती है, बट ठीक है, मतलब कि जस्ट कुछ दिनों में। तो स्कूल के लिए भी यहाँ पे प्रॉफिट है, जो स्कूल अपने फ्यूचर के डेवलपमेंट में लगा सकता है। तो हाँ, तो अभी आते हैं कि ठीक है, बिजनेस मॉडल अच्छा है। अब कोई भी इनोवेशन अगर होता है तो वो मतलब कि मैक्सिमम स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ, वो या तो टाइम सेव करना चाहिए और इकोनॉमिकली अफोर्डेबल होना चाहिए। आपका पैसा भी सेव करे, आपका टाइम भी सेव करे। मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, इंटरटेनमेंट को अगर छोड़ देते हैं तो कोई भी इनोवेशन अगर आया है तो या तो आपकी टाइम सेव कर रहा है तो वो सक्सेसफुल है, या फिर वो आपको इकोनॉमिकली अफोर्डेबल है। दो चीज होता है। तो इसमें टाइम भी सेव कर रहा है और इकोनॉमिकली भी अफोर्डेबल है। अभी आप सोचिए कि 13 साल का कोर्स मिल रहा है आपको 3000 रुपये में, वो भी जेई का, नीट का। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जब बायजूस आया था उससे पहले अगर आप आईएएस वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं तो एक ढंग के ठीक ठाक इंस्टीट्यूट में 3 लाख रुपया फीस थी, और जेई वगैरह के लिए 90,000 वगैरह एक ठीक ठाक फीस थी। तो अभी बायजूस ने क्या किया, जो 3 लाख का जो आईएएस का था उसको उन्होंने कर दिया इट्स नियर बाई 1,95,000। लाइक मतलब बहुत ही बड़ा एक बहुत ही कम पैसे में कोर्स प्रोवाइड करे। और दूसरा उन्होंने किया तो कि इस पे कॉपीराइट नहीं होता कंटेंट पे, तो आप कैसे मतलब ऐसे कम पैसे पे कैसे बेच सकते हैं मतलब? अभी तो देखिए, आपका बिजनेस मॉडल क्या है? हाँ वो तो मैं बताऊंगा, पहले बिजनेस मॉडल डिस्कस कर अच्छा ले। अच्छा अच्छा। वेरी सिंपल है एक्चुअली, इसमें कुछ भी नहीं है, कॉपीराइट है कुछ भी नहीं। अब किताब से अगर मैं कुछ पढ़ के लोगों को बता रहा हूँ, वैसे तो भी इंडिया में आई थिंक ये फ्री हो गया। अगर आप किसी की कॉपी, अगर किसी की किताब अगर आप कॉपी पेस्ट करके मार्केट में सेल करते हैं तो भी ये पेटेंट फ्री हो गया, कॉपीराइट फ्री हो गया एजुकेशन, आई थिंक। विशाल सर, आपको अगर इसके बारे में कुछ आइडिया हो तो आप किसी की भी सेम कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अब बुक से डेटा ले रहा हूँ, किसको क्या प्रॉब्लम होगी? जो भी इसमें डेटा दी गई है विकिपीडिया से एंड बुक से दी गई, तो कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो समझ रहे जैसे हैं? कि उसको सारे को रिकॉर्डिंग हो जाएगा ना, वॉइस रिकॉर्डिंग या वीडियो हाँ रिकॉर्डिंग भी, दोनों। हाँ, फिर उल्टा हम लोग उसका कॉपीराइट ले सकते हैं कि ये हमारे वीडियो रिकॉर्ड है, इसको कोई और कॉमर्शियलाइज ना करे। अरे तो आप ये किस बुक से लेंगे? जैसे आप एनसीईआरटी से लेंगे क्या? एनसीईआरटी या एग्जैक्टली, फिर एनसीईआरटी से, या राइट। जो एनसीईआरटी या फ्री है। सरकारी बुक है? क्योंकि हाँ प्राइवेट हाँ, बुक से लीजिएगा तो दिक्कत तो होगा ही होगा, नो डाउट, वो सही बोल रही है। नहीं मैम पहले बात तो सरकारी स्कूल से लेंगे क्लियरली, इवन हम लोग सरकारी बुक से ही ले रहे हैं। और दूसरी हम्म, बात ये कि बुक्स एजुकेशन में अभी कॉपीराइट हट चुका है आई थिंक। अच्छा। हाँ, क्लियरली हट गया। लाइक आप किसी की भी बुक को आप एक कॉपी है करके, एजुकेशन और एक है आपका जो जो प्रिपरेशन फॉर एंट्रेंस एग्जाम है, मतलब जो आपका फिटजी और ये सब है, तो वो तो हाँ उनका कॉपीराइट रहेगा ना? नहीं नहीं नहीं, उनसे हम कहाँ कुछ ले रहे हैं। वो एक्चुअली वो तो खुद भी तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वो तो खुद कहीं से मतलब कि ये ले रहे हैं ये डेटा। ये ये भी सही है, कोई भी खुद से थोड़ी क्रिएट कर रहा है, जो क्रिएटेड है उसी में से क्वेश्चन बना रहा है। एग्जैक्टली, उनका खुद का थोड़ी है वो, फिटजी का खुद का तो थोड़ी वो है। आई बस ये थिंक होता है कि ना, प्योर कॉपी पेस्ट शायद अवॉइड करना होगा, चेक करके उसको मॉडिफाई हाँ करना होगा, मतलब ना नकल अकल से करना होगा। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, हाँ राइट। हम्म। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो प्राइस तो अभी अभी मतलब कि वो शेयर आईएएस करना है क्या? वगैरह। हाँ उसकी भी शेयर करना है क्या वेबसाइट? हाँ, कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। एक तो मिनट। नीचे में पॉकेट फ्रेंडली है। तो लाइक अभी आईएएस का जिसको प्रिपरेशन करना है वो 3000 में प्रिपरेशन ले सकता है, लाइक वर्ल्ड क्लास।
और अभी जैसे कि 3,000 में उसने आईएएस का प्रिपरेशन करना कोर्स लिया और 2,500 उसने पे किया लर्निंग मशीन का फॉर डिवाइस, तो ये हो गया 2,500 और 3,000, 4, 5, 5,500, 6,000 हुआ। तो अभी इसके लिए हम लोग फाइनेंस पीयर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, सबसे नीचे सर देखिए ये कोर्स मतलब कम पैसे वाले पॉकेट फ्रेंडली वाले कोर्स है। फाइनेंस पीयर के साथ पार्टनरशिप कर ली है, तो वो राजी है कि अगर कोई भी अगर फाइनेंशियली वीक है तो 3% पर एनएम पर उनको ये कोर्सेज प्रोवाइड करवा देंगे। मंथली सब्सक्रिप्शन रहेगा 200 रुपीज। और क्रेडिट कार्ड वगैरह लाइक सीसी एवेन्यू वगैरह, तो वहां पर भी क्रेडिट कार्ड से भी आप इसको ले सकते हैं ऑन ईएमआई बेसिस। तो ये जो 6,000 का जो है आपका, ये आपका अराउंड 200 रुपीज एंड 300 रुपीज पर मंथ का हो जाएगा। और किसी जो, अच्छा हाँ, अभी अभी इंटरेस्टिंग, ठीक है, अभी ये ऑलमोस्ट हो गया कवर। विशाल सर, हेलो, ठीक है, या अभी स्टार्ट कर। तो अभी कहाँ से, तो बेसिकली ये आइडिया अभी समझ में आ गया कि चलो तो ये अगर, आइडिया थोड़ा सा क्लैरिफाई करो, वीडियो रिकॉर्डिंग होगा या ओके, ऑडियो रिकॉर्डिंग होगा या दोनों होगा? नहीं ठीक है, प्रोडक्ट की तरफ आते हैं ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसको अगर वन वर्ड में अगर बेसिकली इसका काम है, जो जिस चीज के लिए इसको इन्वेंट किया गया है वो ये रीजन है कि जो बच्चे पढ़ाई में एक से एक कनेक्टेड रहती है। जब हम कुछ भी मेमोराइज करते हैं ना तो हमें एनर्जी चाहिए होती है, एफर्ट चाहिए होती है, तो हम याद करना पसंद नहीं करते, इरिटेशन उससे क्रिएट होता है। दिन में एक लिमिटेड एनर्जी होती है, तो बुक्स को साइड कर देते हैं कि बुक्स नहीं चाहिए। फोर्स है, लाइक एग्जाम का फोर्स है, या फिर अभी पढ़ना ही पड़ेगा, टीचर आ गए हैं, तो हम लोग उसको जनरली नहीं अभी कुछ लोगों को छोड़ के जनरली बुक्स पढ़ना। आप भी अगर याद करेंगे तो आपको याद करेंगे, जब आप क्लास 10th में थे तो आपको क्या सब कुछ याद आ रहा है, तो आपको वही सब कुछ याद आएगा जो अपने टीचर्स के साथ डिस्कस किया। लाइक अभी भी हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं ये वॉइस के थ्रू ही हो रहा है, और हमारा जो ईयर है ना वो डायरेक्टली मेमोरी से कनेक्टेड है, और जो पहला सेंस बॉडी में डेवलप वो साउंड ही होता है, वॉर्म में ही डेवलप हो जाता है। हम इंडिया में कितने स्टेट्स हैं तो वो बताएगा, वो कैलकुलेट, अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पहले बेसिक बेसिक टच कर देता हूँ। तो मेनली काम है कि उसे पूछेगा, उसको बताएगा वो कितना मेमोराइज कर रहा है, कितना मेमोराइज नहीं कर रहा है। जब देखेगा कि एक्चुअली स्टूडेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं जो रट मतलब याद रटते ज्यादा अच्छे से और इजीली हैं, और एक होते हैं जो रटने में थोड़े पीछे रहते हैं, जल्दी मेमोराइज नहीं कर पाते। तो ये मशीन देख लेता है कि इसको एक चीज को कितनी बार रिवाइज करवाना है। तो इसमें क्या है ना, जैसे सपोज एक हिस्ट्री का एग्जांपल लेता हूँ, हिस्ट्री में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 5 एग्जांपल लेता हूँ, मतलब 5 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ईच एंड एवरी, ईच मतलब सारे सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन ही होते हैं। तो 5 करके अगर 10 चैप्टर है तो 50 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। तो ये क्या करता है, 50 क्वेश्चन को ट्राई करता है कि 10 करके 5 बार में डायरेक्टली पहले उसको लॉन्ग लॉन्ग में पूछेगा, फिर डायरेक्टली शॉर्ट शॉर्ट में पूछ के रिवाइज करवाएगा। तो जब देखेगा कि एक चीज को इतना जल्दी रिवाइज कर रहा है तो उसका अगर स्लो रिवाइज कर रहा है तो रिपीटेशन बढ़ा देगा, उसको मेमोराइज करवाएगा। और अगर फास्ट अगर वो रिवाइज कर रहा है तो उसका रिपीटेशन कम हो जाएगा। वो डिपेंड करता है ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स के हिसाब से, वो ऑलरेडी प्रोग्राम किया गया है। अब ये चीज क्या होता है ना कि मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स को। सपोज अभी घर में डांट सुनने को मिली, या फिर कुछ फेलियर हुआ, झगड़ा हो गया बाहर, या पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया, तो मशीन ये डिटेक्ट कर लेती है उसे कि अभी ये लाइक अभी ये इमोशनली लाइक वीक है, तो वो क्या करेगी, जो इजी चीजें, जो इंटरेस्टिंग चीजें वो उसे रिवाइज करवाएगी, और जो जब वो खुश है तो उसको जो टफ चीजें है वो उसको मेमोराइज करवाएगी। और उसको मोटिवेट भी करेगी, जब कभी वो लाइक इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा पढ़ाई में तो उसको मोटिवेट भी करेगा, कुछ अच्छी चीजें उसको बताई जाएगी। लाइक हमारा जो माइंड है ना वो इमोशंस पे रिएक्शन क्रिएट करता है, तो अच्छी चीजें बताने तो रिएक्शन भी आते रहेगा। और एक चीज है कि जब 24/7 जब आप पढ़ाई से रिलेटेड ही जब पढ़ रहे हो तो वो ब्रेन भी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। अभी एग्जाम्पल उतने अच्छे से आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं ना, तो अभी मैं कौन सी चीजें छोड़ने वाला हूँ, कौन कौन सी बोलने वाला हूँ पता नहीं, बट बाद में ट्राई करूंगा सारी कवर करूँ। तो अभी सपोज कर लीजिए आप क्लास 1, लाइक क्लास 10 वाला एग्जाम्पल ले लीजिए। अभी जैसे आपको नहीं पता मास क्या होता है, हम क्लास 10 में है लेकिन हमें नहीं पता मास क्या होता है,
लाइक हाइड्रोजन कितने एलिमेंट्स वगैरह क्या होता है, लाइट ईयर क्या है, लाइक आई मीन पता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक्चुअली नहीं पता रहती है, वो चीजें हम लोग चाह कर भी कभी समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली बेस क्लियर नहीं है, वो चीजें क्लियर नहीं है। तो लर्निंग मशीन डिजाइन किया गया है कि आपके एजुकेशन, आपके स्कूल सिस्टम को इतना इजी और इतना कंफर्टेबल बोला जा सके कि टीचर अगर कुछ भी बोले तो वो वर्ड ऑलरेडी आपको पता हो, वो एक्चुअली क्या है वो पता हो, ताकि आप सारे सिस्टम्स को अच्छे से समझ सकें। लाइक अगर हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल सुनते हैं क्लास में, तो सिर्फ इतना ही समझ में आता है कि अच्छा आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड इट्स रिलेटेड टू वाटर, ये पानी से रिलेटेड है, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। बट अगर आपको पहले से ही पता हो कि वाटर से रिलेटेड है और ये क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो जब आप क्लास में जाएंगे तो उस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से इलिब्रेट कर पाएंगे, टीचर्स के साथ उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और बेटर इफेक्टिव लर्निंग हो जाएगा। अभी आते हैं क्लास 1 में। तो सपोज करिए आपका कोई भी किड है, आपका बेटा है या भाई है, आप चाहते हैं कि बड़ा होकर इंजीनियर बने, या फिर हमारे पास एक हमारा फॉर्म है, उसमें आप उसकी इफिशियंसी देख सकते हैं कि किस फील्ड में इसका ज़्यादा नॉलेज है या किस फील्ड में बेटर परफॉर्म कर सकता है। ऑलरेडी हमने वो डिजाइन करके रखा है, तो उसके थ्रू अगर आप जाना चाहते हैं तो वो सब्जेक्ट उसको दिला सकते हैं, या पर्सनली आपका किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है कि ये डॉक्टर बने, तो हम क्या करते हैं क्लास 1 से ही उसको नीट का प्रिपरेशन करवाते हैं। जब वो क्लास 1 में रहेगा तो उसको उसका जनरल सब्जेक्ट तो हो गया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, उसके बाद 1 2 3 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वर्ड मीनिंग्स वगैरह हो गया, सही से प्रोनाउंस करना हो गया, ये उसका सिंपल सिलेबस हो गया क्लास 1 का, आईसीएससी का या सीबीएसई का। उसके बाद नीट के लिए हम उसको क्या करते हैं, स्पेशली क्लास 1 के स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको प्रिपेयर करते हैं। लाइक ब्लड ग्रुप्स कितने टाइप्स के होते हैं, बॉडी पार्ट्स के नाम, हार्मोन्स कितने टाइप्स के होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता है उसको उसका स्टैंडर्ड बढ़ाते रहते हैं। तो इससे होता क्या है ना कि बायोलॉजी उसके लिए बहुत ही ईजी हो जाती है, उसका जो इंटरेस्ट है बायोलॉजी में, बिकॉज ही हैव नॉलेज, उसके पास बायोलॉजी का पूरा नॉलेज है। अगर टीचर कुछ भी उसे पूछता है रिलेटेड टू बायोलॉजी, ही इज वेरी इनफ स्ट्रेंथ इन बायोलॉजी, सो उसका इंटरेस्ट आने वाला है बायोलॉजी में, एंड ही गोइंग टू बिकम इन फ्यूचर डॉक्टर, वेरी पॉसिबिलिटी। और एक क्या होता है नीट के साथ ना, लोग, अच्छा ठीक है अभी थोड़ा लाइक उसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह भी रहेगा। अभी आते हैं कंपटीशन में। जो लोग कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं, होता है क्या है कि जब कंपटीशन का एग्जाम सामने आ रहा होता है तब वो लोग स्टार्ट करते हैं 4 5 मंथ, जो लाइक लोअर कंपटीशन है लाइक एसएससी जीडी एंड रेलवे, ये स्टूडेंट इस तरीके से करते हैं। जब एग्जाम सामने आ गया है तो 4 महीने पहले स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। जो लोग नीट का या जेई वगैरह है, वो लोग तो साल भर ही प्रिपरेशन करते हैं। तो पहले नीट का एग्जाम्पल दे देता हूँ। जो साल भर प्रिपरेशन करते हैं वो क्या करते हैं, मैथ को लेके पढ़े रहते हैं, मेनली फोकस रहता है मैथ पे और कितना कौन से ट्रिक्स ज्यादा यूज कर सके। बट मेजोरिटी ये रहता है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी उसमें हेल्प कर रही होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीजें जो याद करनी रहती है तो उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। विशाल सर आई थिंक आप ये ज्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हैं, आप स्टूडेंट रह चुके हैं। तो लर्निंग मशीन क्या करता है, जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो आपको पूरा रटा देगा एकदम डीपली अच्छी तरीके से, और मैथ तो आपका प्रिपरेशन हो ही रहा है, प्लस अगर आप प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे तो मैथ के सारे फॉर्मूला, सारे थ्योरम्स अच्छी तरीके से, मैथ को भी मतलब कि कुछ ऐसे जो बेसिक चीजें होती है वो भी मैथ की लर्निंग कराई जा रही है, मतलब मैथ के लिए प्रिपरेशन देते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो वो तो डीपली देते हैं। अब बात आते हैं जो लोअर कंपटीशन एग्जामिनेशन है लाइक रेलवे, बैंकिंग, तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट सिर्फ 4 महीने के लिए प्रिपरेशन करते हैं। उसमें भी वो क्या पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं और रीजनिंग पढ़ते हैं, जीके को भूल जाते हैं, इंग्लिश को भूल जाते हैं, हिंदी को भूल जाते हैं, या 2 दिन पढ़ाई की है। लेकिन अगर वो लर्निंग मशीन खरीद लेते हैं तो साल भर वो पहले बात तो स्टडी से टच रहेंगे, उनका जीके पूरा स्ट्रांग रहेगा, उनका हिंदी पूरा स्ट्रांग रहेगा, इंग्लिश पूरा स्ट्रांग रहेगा, एंड मैथ भी स्ट्रांग रहेगा। तो ये है बेसिकली। और एक चीज है कि इसका भी मैं पहले तो इसको जस्ट लर्निंग मशीन के हिसाब से भी इसको लॉन्च करने वाला हूँ, ट्राई कर रहा हूँ इसी मंथ में लॉन्च करूँ, जितना पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, क्योंकि ऑलरेडी इस पे 6 years लग चुके हैं। और उसके बाद इसका नेक्स्ट वर्जन आने वाला है रोबोट टीचर, मतलब कि अभी मतलब अपने बेंगलुरु में एक स्कूल एंड यूनिवर्सिटी है जो लोग रोबोट टीचर बना रहे हैं। इसकी कॉस्ट अबव 10 5 लाख है। वो टोटली मतलब पूरा रोबोट ही है, पूरा मैकेनिकल है। नॉलेज सिंपल है, नॉलेज विकिपीडिया से लिया गया है, लेकिन रोबोट पूरा मैकेनिकली बनाया गया है, तो इसका कॉस्ट 5 लाख रुपए आता है। तो इस चीज को मैं 2,500 रुपये में हर स्टूडेंट के लिए स्पेशली एक रोबोट टीचर देने वाला हूँ। इसमें क्या होगा, रोबोट टीचर से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, हे गिगाई, जो भी आपका, लाइक एलेक्सा में क्या होता है ना कि आप उसे, आपके पास कितने क्वेश्चन ही रहते हैं एलेक्सा से पूछने के लिए। जब नया नया एलेक्सा खरीद के लेके आए, 10 या 20 या 50 क्वेश्चन पूछे, फिर एलेक्सा पड़ा है किसी कोने में, या कभी कोई मन हुआ तो पूछ ले, क्वेश्चन है ही नहीं। अभी भी मगर आप लोगों से किसी से पूछूं कि मेरे को 100 क्वेश्चन आप लोग पूछिए, तो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमारे मेमोरी में बहुत कुछ है, बट हमारा एक रैम भी है जो उसको एक्सेस करता है। तो वो हाउ टू एक्सेस, वो जब तक हम रिलेट नहीं करेंगे वो क्वेश्चंस नहीं आ पाते हैं।
तो मतलब सेम लर्निंग मशीन वाला सिस्टम रहेगा, आपको इजीली वो पढ़ाते रहेगा। लेकिन जब कुछ आपको डिटेल में जानना है तो रोबोट टीचर से आप पूछ सकते हैं कि कैन यू एक्सप्लेन मी दिस, तो वो एक्सप्लेन कर देगा। और अगर कुछ वो भी अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव से टीचर से डायरेक्टली ऑनलाइन करेक्ट हो जाएगा, जिससे जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे वो पूछ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बेस्ड ये रहेगा। और ये हो गया। और थर्ड जो इसका जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है वो ये है कि इसके अंदर रोबोट, और वहाँ एक चीज इंटरेस्टिंग चीज है, रोबोट को मैं अपना फेस देने वाला हूँ इन लाइक 3D, थोड़ा अच्छा लगे लोगों को। और तीसरा ये रहेगा कि उसका जो आईज रहेगा उसमें लाइक प्रोजेक्टर भी लेके आ रहा हूँ, ताकि अगर कुछ ऐसा चीज जो वीडियो से इजी समझ में आए तो उस चीज को रोबोट प्रोजेक्ट कर सके। लेकिन ये थोड़ा बहुत कॉस्टली होने वाला है, दोनों चीज इकोनॉमिकली अफोर्डेबल उतना नहीं रहेगा। तो मेनली अभी लर्निंग मशीन है जो काफी हेल्पफुल है, और इसलिए लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन वगैरह पूछिए यार, अभी बहुत कुछ है जो हाँ क्वेश्चन में नहीं, इसके बारे अभी में लर्निंग करते मशीन रहो। है कुछ अपने पास, मतलब दिखाने के लिए, या कुछ भी एक वीडियो वगैरह सब्जेक्ट है या लेकिन वो सर रिवीजन एक्चुअली कुछ? पुराने वाले पे है। वीडियो वगैरह है, शेयर करूँ क्या? थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, मतलब अच्छे से रिकॉर्ड नहीं किया गया। मैं नहीं नहीं, रिसेंटली कोई बात 4 नहीं, नहीं जस्ट पूछ रहे हैं अभी कि ओके। तुम्हारे पास जो मशीन या जो भी बनाया है तुमने, किस टाइप का हाँ बनाया है अभी तक? एक छोटा सा बॉक्स है, क्या है, किस टाइप का हाँ, चीज छोटा है? सा बॉक्स है वो, तो वेबसाइट पे लॉगिन करिए दिख जाएगा। एक एक क्या बोलते हैं, एक सॉन्ग्स का आया है ना, एक कैरावान आई थिंक बोलते हैं, 1000 या 2000 सॉन्ग्स होता है उसमें पुराने, हाँ हाँ उस हाँ टाइप का हाँ हाँ मशीन? हाँ। उस टाइप का नहीं है एक्चुअली, ये कंप्यूटर टाइप में है। अभी जो इसको डिजाइन कर रहा हूँ इसका हाउसिंग, वो कंप्यूटर टाइप में है। लाइक वो क्रिस में है ना, अपना एक फ्यूचर कंप्यूटर बनाता है फिर उसको तोड़ देता है वाइट वाइट कलर में। तो उस तरह का डिजाइन दे रहा हूँ, और वो स्पीकर वगैरह इसमें लगे रहेंगे, 2 स्पीकर लगे रहेंगे, तो उस टाइप का। या फिर मॉडर्न कंप्यूटर के जैसा इसको फेस देने वाला हूँ। ये सारे अगर वीडियोस यूट्यूब पे डाल दिए जाए और उसको लिंक वीडियो नहीं है किया एक्चुअली, जाए, अभी तो ये सिर्फ ऑडियो है, अभी तो सिर्फ ऑडियोज है ये। ऑडियो ही यूट्यूब हाँ पे डाल दिया जाए या यूट्यूब जैसा किसी और चैनल पे, तो हाँ बोल सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट लाइक अ चैनल है, बट हाँ। वो जो कंटेंट, मतलब एक इसके बाद क्या दिखाना है, उसके बाद क्या दिखाना है, यूट्यूब में भी इनफैक्ट उसका यही काम करता है कि आपको जो चीज़ें पसंद है वही दिखाएगा वीडियो एज अ नेक्स्ट सजेशन। सो ओके। aren't you similar direction in some ways? नहीं 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 सर, एक्चुअली टोटली डिफरेंट है। अगर पहली बात तो है कि यूट्यूब की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सब कुछ तो बुक्स में ऑलरेडी है, तो यूट्यूब की क्या जरूरत है। बायजूस है, बायजूस की क्या जरूरत है, सब कुछ तो बुक्स में है, बुक्स वाली चीज को ही उसने वीडियो में बनाया है। बुक्स में क्या है, 2D है, पढ़ के हमें समझना पड़ता है, इमेजिनेशन करना पड़ता है कि एक्चुअली जो भी राइटर है उसने क्या बोला है। वीडियो में क्या होता है, इमेजिनेशन नहीं करना पड़ता, वो लोग ऑलरेडी इमेजिन करके दिखाते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है। यूट्यूब पे क्या है और गूगल पे क्या है, अपने को जाके सर्च करना पड़ेगा। ओके गूगल टेल मी दिस, सर्च करना पड़ता है। लोग इतने मेहनती नहीं होते हैं कि जाके सर्च करें, इतने मेहनती होते तो इतना इनोवेशन ही नहीं होता। लोग लेजी होते हैं, नहीं कर सकते। अब यूट्यूब पे गए, अभी बायजूस को ही ले लीजिए ना, नया नया आपने बायजूस खरीद लिया, 2-4 दिन आपने वीडियो में बस वीडियो वीडियो देखे, उसके बाद आपका टैब पड़ा है किसी कोने में। हाँ लेकिन ये है कि जब भी पढ़ने का मन करेगा तो आप पढ़ाई करेंगे उस टैब से ही, फिर आप बुक नहीं टच करेंगे, क्योंकि वो काफी इजी है। लेकिन फिर वो भी किसी कोने में रहता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये आपको पढ़ना ही है, इसको आप ये नहीं कर सकते। हाँ इसमें स्लीप मोड वगैरह है कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आपने प्रेस कर दिया, फिर 6 आवर के लिए स्लीप में चला गया, फिर ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएगा। और आप सोने के लिए जा रहे हैं तो इसको स्लीप मोड में डाल दीजिए। और टाइमिंग वगैरह भी सेट कर सकते हैं, और नहीं तो ये मैनुअली यूज कर सकते। इसमें क्या है ना कि आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा, आप सुबह उठे ब्रश करने के लिए गए, इसने कुछ आपको बोल दिया कि स्टडी बडी टाइप हो गया हाँ ना, हाँ, या कुछ भी आपको पिताजी टाइप बोला। हो गया, या हाँ मम्मी टाइप हो पिताजी गया, टाइप। जबरदस्ती हाँ हाँ पढ़ाए जा रहे, पढ़ाए जा रहे, पढ़ाए जा रहे, हाँ बट यहाँ ऑफ हाँ किया जा सकता है। हाँ। और क्या है, और एक चीज है कि एक्चुअली पढ़ना सभी चाहते हैं, पढ़ने में इंटरेस्टेड सभी रहते हैं, लेकिन मन नहीं करता जाके पढ़ने का। तो क्या है कि आप इंटरेस्टेड तो हो पढ़ने में, तो आप लर्निंग मशीन ला के रख लो, 5 सेकंड के लिए बोलेगा, बस 5 सेकंड के लिए सुन लो। और आप 5 सेकंड के लिए आप चाह कर भी अपना कान बंद नहीं कर सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको वो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इतने कम टाइम के लिए होता है और वो रिलेटेड रहता है आपके स्टडी से, तो आप वो इंटरेस्ट करोगे। फिर जैसे कि आप ड्रेस चेंज कर रहे हो, स्कूल का रूटीन वगैरह सेट कर रहे हैं, रूम में कुछ भी कर रहे हैं, वो बोलेगा, अब सुनते रहेंगे। मतलब दिन में कम से कम आपको 200 तो क्वेश्चन जबरदस्ती आंसर। भजन सुनाने वाला जैसा जबरदस्ती, लग रहा है सुनने जबरदस्ती, में। एकदम 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 जबरदस्ती रामायण जबरदस्ती। सुनाना पड़ेगा सबको।
एकदम एकदम ये जबरदस्ती होने वाला है, बट आई होप कि इसको लोग पसंद करें। ऐसा ना हो कि सच में ये जबरदस्ती रहे। होप कि इसको पसंद करें, क्योंकि नॉलेज बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उससे इमोशनली लोग अटैच होंगे ही। और नहीं ये होंगे दोनों क्या, ये क्वेश्चन है, लोग पढ़ना चाहते हैं तुम्हारे हिसाब से? लोग पढ़ना चाहते हैं बट पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ते नहीं है। पढ़ना ऐसा क्यों है नहीं क्या चाहते हैं? कि पढ़ इसलिए हाँ नहीं तो पाते हैं कि पढ़ना ही नहीं चाहते? नहीं, इंटरेस्टेड नहीं है, मन नहीं करता है पढ़ने का, मतलब कि वो इरिटेशन क्रिएट होता है जब बुक का या पढ़ाई का नाम आता है तो। लेकिन चाहते हैं कि भाई मैं टॉप करूं, मेरे पास कुछ सुपर नेचुरल पावर हो ताकि मैं पढ़ लूं, सिंपल सी बात है। हाँ बट जैसे भी लोग यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, सिनेमा देखते रहते हैं बैठ के, उसके जगह वो कुछ एजुकेशनल वीडियो भी देख सकते हैं, बट वो नहीं देखते। नहीं नहीं तो इतना यहाँ तो आसान नहीं है साइकोलॉजिकली इशू एजुकेशनल। है। नहीं नहीं नहीं, एजुकेशनल वीडियो देखने का मतलब कि वो डेटा आप स्टोर कर रहे हैं माइंड में, और जब डेटा आप माइंड में स्टोर कर रहे हैं तो आपको न्यूरॉन्स क्रिएट होंगे, न्यूरॉन्स क्रिएट होते हैं तो लिमिटेड एनर्जी है, वो भी पेन क्रिएट होने लगेगा। मूवी में क्या है, याद वाद नहीं करना है, चलने दो नेक्स्ट, चलने दो व्हाट नेक्स्ट, वाइस नहीं नॉट, नहीं, अच्छा टाइम मूवी पास है। इंटरटेनिंग है, वो देख के हाँ अच्छा लगता है। एंटरटेनमेंट ठीक है, है, अच्छा लगता है, राइट, हाँ डोपामिन हार्मोनल रिलीज रश है। होता है। और राइट पढ़ाई लिखाई राइट, में क्या है ना, वो डोपामिन रिलीज नहीं होता। स्लीपिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है। खासकर अगर हाँ बुक लेके कोई बेड पे लेट जाए, आधा घंटा में सो हाँ, जाएगा मोस्ट ऑफ द पीपल। राइट राइट राइट। तो ओके, तो ये मैं चीज चाहूंगा आप लोग सुन कुछ सुन के भी टफ तो हो क्वेश्चन सकता है, पूछें। क्या चीज है? ये चीज सुन सुन के भी तो हो सकता है। कोई अगर हाँ भजन हाँ, ही सुन बजा सुन, दो किसी को, या बोरिंग म्यूजिक, उसको भी सुन के लोग लेकिन सो जाएगा। एक मिनट देखिए, भजन अगर नहीं आप सुनो, बहुत एक और सुनेंगे तो चीज मैं साइड। बता दें, ऑनलाइन क्लासेस में बहुत लोग सो जा रहे हैं। क्यों सो जा रहे हैं बताओ? सेम चीज सर, इनफैक्ट स्टडी, स्टेटस सेम भी चीज शेयर किया स्टडी। उसको। सर सेम चीज सर, स्टडी सर क्रिएट्स न्यूरॉन्स, क्रिएट न्यूरॉन, सिंपल सा बात है, इरिटेशन क्रिएट होता है, इंटरेस्टेड नहीं है इसमें लोग, समझ रहे हैं? फिर भी लोग चालू रखते हैं ना, ये चीज तो, देखिए, तो डर का बिजनेस है। वो अरे कमल मैम, यू आर लाइव है। सेइंग समथिंग। हाँ सो जा रहे हैं, डर, हाँ डर के मारे मतलब अब लाइव रह रहे हैं, लेकिन फाइनली वो एक्टिव है, प्रेजेंट है, लेकिन वो सुन नहीं रहा है, बात अलग है। तो यहाँ पे वो है कि वो 5 सेकंड के लिए बोलेगा, वो सुनेगा ही, और वो काम डेटा, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये काम की इन्फॉर्मेशन है, सारी वोकेबलरीज रहेंगी। मतलब कि क्या होता है ना, बहुत सारे वोकेबलरी हम लोग वीक तो रहते ही है, प्रोनाउंसिएशन भी सही से नहीं करते, बच्चों के प्रोनाउंसिएशन अच्छे हो जाएंगे, और जो कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं डीपली उनको नॉलेज मिलेगा। ये मतलब कि रिपीट रिपीट रिवीजन में ही तो डिवीजन है, हम जितना रिवाइज रटाया जा करेंगे रहा जितना रिपीट है, करेंगे रट्टू तोता वाला उतना हमें मेमोराइज कहानी होगा। है, तोता बनाए हो। एग्जैक्टली, एकदम 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 तोता बनाया इन वन वर्ड। तो ये बात है, अब देखना ये तोता कुछ काम कर पाता है या नहीं, मार्केट में क्या करता है। यस कमल मैम, और तो एक अभी आपने चीज कितनी है, रिकॉर्डिंग्स कर लिए हैं? हेलो, तो अभी आपने कितनी रिकॉर्डिंग्स अभी कर ली हैं, मतलब मेरे कितने? पास अभी मेरे पास ये 10,000 रिकॉर्डिंग्स है, और सीबीएसई की टेंथ ट्वेल्थ 10,000, की? टेंथ ट्वेल्थ की मतलब, या 10th या सब? 10th, ओनली ओनली 10th स्टैंडर्ड। तो इसमें से अच्छा। मैंने क्या किया है, कुछ जो बेसिक जीके है वो मैंने सेपरेट कर लिया है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, तो उसके लिए मेरे को करीब 3-4 थाउजेंड रिकॉर्डिंग्स नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें एक ही है, थोड़ी सी 19-20 है और दूसरे दूसरे वे में है। तो फिर अभी आपके इन प्रोसेस है ट्वेल्थ, और मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह इनके वीडियोस, ऑडियोज इन प्रोसेस है? हाँ देखिए, एक्चुअली हाँ ये सब प्रोसेस में है, और मैं जो भी वेट कर रहा था वो ये था कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करना, कि बच्चा कब रूम में कुछ कर रहा है कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि जब वो कुछ कर रहा होता है तब अगर उसको डिस्टर्ब कर दिया तो वो तो उठा के फेंक देगा लर्निंग मशीन। भाई मैं पढ़ाई कर मेरे को डिस्टर्ब कर दिया, मैं गेम खेल मेरे को डिस्टर्ब कर दिया, मैं सो रहा हूँ मेरे को डिस्टर्ब कर दिया। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के लिए करीब करीब मेरे को इस पे करीब 3 इयर्स वर्क करना पड़ा है, और इसको मतलब कि इकोनॉमिकली अफोर्डेबल बनाने के लिए, अगर मैं इसमें थर्मल कैमरा यूज करता हूँ तो मिनिमम कैमरा है वो 33,000 रुपीज का आता है, और उसकी जो रेंज है वो लेस देन 1 मीटर है एक्यूरेसी। और अगर 1 लाख से ऊपर है वो, अगर कैमरा खरीदता हूँ तो वो एक रूम को कवर कर लेगा, लेकिन सीन ये है कि खरीदेगा कौन फिर लर्निंग मशीन। तो इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में पूरा टाइम गया है अभी तक, बट फाइनली ये चीज अभी इम्प्लीमेंट हो गई है कि जब स्टूडेंट कुछ नहीं कर रहा है, वो रूम में घूम रहा है, या फिर फ्रेंड लोगों से, मतलब कि कोई फ्रेंड उसके रूम में कोई इंटर किया, या वो रूम से जब बाहर गया, तो उसी टाइम पे, जब जिस टाइम पे वो एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहा होता है,
समझ रहे? उस टाइम पे ही ये बोलता है, उस टाइम पे ही ये आपको रिवाइज करवाता है, आपको 10 सेकंड का क्लास देता है, 5 सेकंड का क्लास देता है और फिर चुप हो जाता है। फिर से ही वो तो फिर ये है तो कितना फिर वो मतलब हाँ, उसमें और एक चीज है। आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, जिससे एक बच्चा मैम कितना आपकी वॉइस लाइक ब्रेक हो गई। परसेंटेज? हाँ, ओके, अब आ रही है वेबसाइट पे। आपको? हाँ, अभी आ रही है। जैसे एक बच्चा है, वो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ओके कितना ओके, सिलेबस इसके थ्रू कवर कर एग्जैक्टली सकता है? एग्जैक्टली। विशाल जैसे सर, 10th क्लास का 20%, या श्योर तो श्योर। उस पे डिपेंड करेगा ना कि राइट मैम, राइट मैम। विशाल सर एक बार वेबसाइट ओपन करिए। मैंने कोर्स सारा देख लिया आपका क्या है, नहीं, पर कोर्स नहीं, आपने मैं कुछ और एस्टिमेट दिखा रहा हूँ। लगाया? अच्छा, ठीक है। हाँ, ये जो सर, ये जो इसमें जो है, ये सेकंड वाली जो पिक्चर है वो थोड़ा जूम करिए। सेकंड वाली पिक्चर है, ग्राफ वाली। हाँ, इसको और जूम कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें देखिए मैम, एक्चुअली 5 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, ठीक है। हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ, तो जो इसमें ऑरेंज कलर से है ना, वो विदाउट हम्म। लर्निंग मशीन है। जो ग्रीन कलर से है वो विथ लर्निंग मशीन है। तो ये आप परसेंटेज वगैरह देख सकते हैं और इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। हम्म। तो आपकी जो टारगेट मार्केट रहेगी वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट 4 वाली रहेगी, और एक्सपेरिमेंट 2, नहीं नहीं 3 मैम, भी। नहीं नहीं मैम, एक्चुअली सारे ही तो रहेंगे। आपने आपको क्या अपनी लगता है? मार्केट कैसे डिफाइन किया? टारगेट मार्केट आपने कुछ डिफाइन किया हाँ होगा? हाँ हाँ, those who are student and those who want to learn something, those are my client and my customer। एंड मेनली मैं ट्राई कर रहा हूँ कि स्कूल बाय स्कूल ये करूँ। अगर पहले स्कूल में अच्छा रिजल्ट, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि 45,000 एक स्टूडेंट से छोड़ दीजिए, 25 स्टूडेंट भी अगर इसको खरीदते हैं तो आई एम इन अ सक्सेस वे। और अगर ठीक ठाक खरीद लेते हैं तो मैं ट्राई करूंगा फिर उसको बायजूस वगैरह जो है डायरेक्टली बात करूंगा कि आप अपने कस्टमर लीड वगैरह हमको दे, या हमारा प्रोडक्ट आप सेल करें अपने डायरेक्ट कस्टमर वगैरह को। जितना मेनली मेरा मेन ओपिनियन यही है कि नेक्स्ट को कुछ अपनी तरफ से दे सकूं, एजुकेशन को एटलीस्ट जितना चीप हो सके बना सकूं। मेरे को उतना बहुत प्रॉफिट नहीं चाहिए, ठीक। मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो इससे लाख गुना इम्पोर्टेंट है। मेरे जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं उन पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। तो इसका मेरा यही है कि एजुकेशन चीप बन जाए और फिर इसको बायजूस वगैरह, अन अकेडमी वगैरह, इन सबको हैंड ओवर करके वगैरह है कंपटीशन सात वगैरह वर्ड्स में टू कि आस्क, मेरे को कुछ करने की सात जरूरत मिनट ना पड़े। वो लोग ऑलरेडी अपना काम करेंगे। और फिर इसको ग्लोबली थोड़ा एक्सपेंड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि विशाल सर मेरे साथ है तो आई थिंक बहुत सारी हेल्प हो जाएगी ग्लोबली एक्सपेंड करने में। मेरा और उसके बाद नेक्स्ट मेरा एक प्रोजेक्ट पे सवाल फोकस है, करूंगा। मेरा एक सवाल है। हाँ हाँ प्लीज। बोलिए सर, बोलिए। मेरा एक सवाल है, ये तो जितना भी चीज आपने बताया वो तो सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग रहा। इसका कुछ डेमोन्स्ट्रेशन है कि कैसे ये काम होगा? इसका कुछ आप लोगों ने 3D व्यू या कोई एनिमेटेड कुछ व्यू बनाया है? सर देखिए, एक्चुअली जो फर्स्ट जो बीटा वर्जन था डेमोन्स्ट्रेशन ना, उसका एक वीडियो है मेरे पास। लाइक ऐसे ही मजाक मजाक में वीडियो बना लिए थे, वो विशाल सर मैंने आपको शेयर किया था ना। किया तो बहुत पहले। हाँ, तो वो आपको मैं शेयर कर सकता हूँ। और इसका मैं 5 दिन में अच्छे से मैं ट्राई कर रहा हूँ, 5 से 10 दिन में। और जो किसी कस्टमर स्टूडेंट के से लिए जो वीडियो होगा वो, बनवाओ रहता हाँ, वो ऑब्वियसली स्टूडेंट वगैरह भी रहेंगे। तो वो जो फाइनल वीडियो है वो ट्राई कर रहे हैं, उस पर मतलब स्क्रिप्ट वगैरह जा रही है। तो वो फाइनल वीडियो हम बना ही रहे हैं कुछ दिन में, मतलब 5 से 10 दिन में आई होप कि बना दें। लेकिन आई थिंक 20 डेज अगर हो गया तो अभी मैं चाहता हूँ आप लोगों से एटलीस्ट मुझे फीडबैक बताएं कि नहीं क्या तो एक चीज कैसा मुझे क्या रहेगा लगता है ये। ना, कि तुमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स चूज कर लिए हैं, तो डोंट हाँ, चूज सारे सब्जेक्ट एक साथ। आई थिंक एक राइट, सिंपल स्ट्रेटजी मेरे माइंड में है, जस्ट ओके, वोकेबलरी को रिकॉर्ड कर दो, भर के प्रोडिक्शनरी डाल दो एक तरह से, ठीक ओके, है। ठीक है, लोगों का वोकेबलरी बहुत वीक होता है इन जनरल, उन्हें पता भी नहीं होता ओके, है। और तुम्हें हाँ, वो दिख जाएगा, बात करते हो ना, वर्ड्स नहीं आते उनके माइंड में। वो इसलिए नहीं आते राइट, राइट, कि अगर एक वर्ड चाहिए तो आपके माइंड में उसका 10 ऑल्टरनेटिव भी होना चाहिए, और एक राइट, दो ही राइट, आता है हाँ, तो दे विल बी ऑलवेज हैविंग प्रॉब्लम टू फाइंड आउट दोज वर्ड्स। ओके, इनफैक्ट तुम्हें भी समझ में आ गया होगा जब इंग्लिश बोलते होगे या जो भी, तो हाँ हाँ रन हाँ, आउट ऑफ वोकेबलरी, राइट।
तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं इसको मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प नहीं करेगा ये, बट कुछ सब्जेक्ट्स में ये Okay. बहुत हेल्प कर सकता है। लाइक बच्चों का Like स्टोरी टेलिंग है, इनफैक्ट मोरल वैल्यूज, रामायण महाभारत का दोहा या कुछ सीख जो एज सच लेकिन वगैरह में इसके लिए नहीं तो है। सर एक्चुअली ये जो वीडियो रहेगा रामायण के लिए ये मिनिमम 4-5 मिनट का तो होना ही चाहिए एक सेशन। नहीं नहीं तो उतना तो कोई बैठ के नहीं स्टोरी होगा। सो स्टोरी है ना, अगर तो सुन लेंगे लोग आधा घंटा 1 मिनट। सिनेमा क्या है, बेसिकली स्टोरी है, राइट? सिनेमा देख के ही लोग हीरो बनते हैं ना, और फिर एक्सीडेंट भी हो जाता है उनका। तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसमें रामायण अगर डाल सकते हैं और लोग अगर उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम इसको स्कूल उनके क्लास से रिलेटेड जो उनके आज क्लास में पढ़ाया गया हो वो अगर इसमें डाले तो वो इंटरेस्ट ले, और वो भी नहीं एग्जैक्टली वही लाइक देखना होगा। 5 to 10 सेकेंड, क्या ये पॉसिबल है? देखो अल्टीमेटली क्या है, 2 स्कूल है, एक स्कूल में अच्छे स्टूडेंट है, एक स्कूल में अच्छे स्टूडेंट नहीं है। ओके नहीं है तो रीजन क्या है एग्जैक्टली? एक जगह इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई हुई और एक जगह उतनी नहीं हुई, यही है ना अंतर, और क्या है अंतर? हाँ हाँ सर तुम्हारा सर आपने एक कंटेंट बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग होना एक्चुअली चाहिए। एग्जांपल दिया। मेन चीज क्या होता है ना, टीचर्स उसमें बोलो बोलो। राइट सर। सर आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बोली कि किसी स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई, किसी स्कूल में अच्छे से पढ़ाई हुई। तो जो पढ़ाई जो करवाते हैं वो एक्चुअली टीचर्स होते हैं। तो कुछ जो वेल एजुकेटेड हैं, टीचर मिल रहे हैं ग्लोबली, मतलब ऑलरेडी मिल रहे हैं और जिनको राइट सर आपका वो ये म्यूटेड है। हेलो म्यूटेड है सर आपका। हाँ नहीं समझ गया मैं। हाँ नहीं ठीक है। हाँ बेसिकली कंटेंट तुम्हारा होना चाहिए एकदम बहुत इंटरेस्टिंग। अब हाँ कंटेंट एक्चुअली हम लोग ट्राई कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी एक पार्ट बनाया, ठीक है। हाँ उस कंटेंट को कंटेंट इज कौन रिकॉर्ड कर रहा है, कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है, राइट हाँ वो ना मतलब मुक्त एग्जैक्टली करने वाला हाँ। तो ये मैग्नेटिक सर होना एक्चुअली चाहिए, हाँ तभी रजिस्टर राइट करेगा फास्ट, मतलब राइट अदरवाइज तो काम राइट चलाएगा, कुछ भी चलेगा, ठीक है। हाँ। तो ये आई एक्चुअली थिंक जो सर तुम्हें आपने ना, बताया ना ये तुम्हारा सच में बहुत प्रोडक्ट ही सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, जो वो रिकॉर्डिंग करेंगे ना, फीचर्स भी हैं, डेटा फीचर्स मतलब भी जो राइट सर। कंटेंट बेसिकली कंटेंट क्रिएटर्स जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कंटेंट तो तुम बना के फिर जंबल कैसे कर रहे हो, उसमें टेक्नोलॉजी जा रहा है, राइट? एआई जा रहा है या जो भी जा रहा है, ठीक है। वो हर जगह ही अभी कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा एआई तो हर जगह ही है, ठीक है। यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं तो जूम को पता है कि को हाईलाइट करना है, राइट? काइंड ऑफ एआई है वो। ठीक है, नहीं सर इसको एआई नहीं बोलते तो हर जगह है, ठीक है एआई ही है। नहीं सर क्या बोलेंगे फिर सर एआई तो सर मेरा फेवरेट चीज है सर एआई सर मेरा फेवरेट चीज है सर। अब बोल सकते हैं छोटा बड़ा एआई है, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ छोटा मोटा ही एआई है। हाँ ये बहुत छोटा हाँ। तो नहीं एआई तो सर वही है, एआई तो कितना क्या स्ट्रॉन्ग करते हो उसको। हाँ ये बात है। Anyone else? तो सर मैं चाहूंगा कि सब यार अपना एक बार इस पे थोड़ा बहुत हाँ तो advice- मैंने अपना सलाह दिया ना कि एक चीजों पे फोकस करो या 2-4 चीजों पे, 50 चीज मत डालो एक साथ। वो पाइपलाइन जैसा दिखा सकते हो कि इसको भी करेंगे आगे, अदरवाइज ना फंस जाओगे कहीं, मतलब फाइंड आउट कि जैसे आईआईटी का या कंटेंट रहना चाहिए बस। कंटेंट इज द किंग, राइट ना विशाल सर? राइट यस दैट्स व्हाट आई मेंट। मैं सबसे इजी अडेप्टेबल कंटेंट से स्टार्ट करो, ठीक है, फिर हार्ड चीजें। मतलब अभी देखो 12th का एग्जाम आने वाला है, आई थिंक 10th का भी, आई थिंक बोर्ड, राइट? बोर्ड में वो सब्जेक्ट जिसमें लोग बहुत ज्यादा वीक होते हैं, जिसे बहुत ज्यादा रटना होता है, इनफैक्ट तुम्हारे वो सब्जेक्ट्स होने चाहिए रटने वाले सब्जेक्ट्स, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टेट कैपिटल, कंट्री कैपिटल। उसमें कुछ साइंस दिमाग तो लगाना नहीं है, याद रखना है खाली। लाइक पीरियोडिक टेबल वगैरह हो गया, हिंदी स्टोरी, लिटरेचर लैंग्वेज भी जो होता है, राइट हाँ। तो वही थोड़ा सा तुम्हें ना, मतलब ऐसा ना, अदरवाइज तुम्हें 10 साल लग जाएंगे और कुछ नहीं हो पाएगा शायद।
तो राइट सर, तुम्हें ना ऑलरेडी इसलिए फोकस करना होगा ऑलरेडी कि 7 साल निकल चुके हैं, एक्सपीरियंस नहीं, तो जो भी मेरे है को मतलब मिल मैं ही वही चुका है बोल रहा हूँ अच्छे से। कि और आप हजारों हमेशा चीज से करोगे बोलते ना हैं। हाँ तो ये होगा इश्यू हमेशा, हाँ फिर राइट सब कुछ साथ साथ चलेगा राइट और सर, शायद कुछ भी ना चले एंड में, राइट बट एक दो चीज को पकड़ोगे तो राइट थोड़ा सा तुम्हारा खुद का बैंडविड्थ भी नहीं होगा ना बहुत सारी चीजों पॉसिबिलिटीज का, है। ये भी तो है ना। अपना स्ट्रेंथ राइट पकड़ो सर, रहता हाँ है, हाँ तुम क्या पढ़ा सकते हो, तो तुम ही कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो ना राइट पहला। हाँ हाँ ओके, राइट। एनीवन एल्स, प्लीज प्लीज, अमित, you wanted to say something? No? Naman, you have any comment? अरे एक और एडवाइस देता हूँ मैं कि जिनके लिए प्रोडक्ट हाँ बनाते सर हो जी, ना उनसे फीडबैक हाँ लेते रहो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बन तो जाता है सामान, जिनके लिए हाँ बना हाँ वो बोलते हैं कि ये तो मेरे लिए है ही नहीं। ओके। तो ये भी सर मैंने एक्चुअली किया ही है, डायरेक्टली यार तुम इनडायरेक्टली वे में अपने लिए बनाओ किया। ना, तुम्हें क्या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है याद करने में या कुछ भी, मैं उसके लिए बनाओ, ऑलरेडी तुम इसको खुद एक बनो अपना अपने टेस्टिमोनियल। हाँ पूरा 1 साल तक इस पे अपना टेस्ट चलाया, और फिर फाइनली इसको दूसरे काम में भी यूज किया, जैसे कि मोटिवेट करने के लिए क्या क्या मेरे लाइफ के एम वगैरह है, तो उस चीजों को रिपीट कराने में देखा काफी यूजफुल है। भी हाँ, है और 1 ईयर तक मतलब एजुकेशन में इसको बेसिकली यूज स्क्रैच योर किया। ओन इच, देयर इज अ फ्रेज, सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम। तो अगर राइट वो करोगे ना तो बहुत हाँ इजीली लोगों को कन्विंस कर पाओगे कि भाई मुझे जैसे इंग्लिश नहीं आता था, मुझे बहुत दिक्कत हुआ, तो मैंने इसलिए स्टार्ट राइट किया राइट कि बाकी लोग ओके को नहीं है ये दिक्कत या कम दिक्कत है थोड़ा, तो ये एक राइट स्टोरी ना टच करेगा लोगों को, ठीक है। राइट तो वो चीज़ है थोड़ा सा, या मतलब अपना नहीं तो घर वाले का या नियर एंड डियर वंस, जो भी मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेशन होगा ना, तो उतना इजी होता है एडॉप्शन थोड़ा सा मार्केट में। हाँ हाँ मतलब किसी के लिए नहीं बना तो अपने लिए बन गया ना, 4 लोग तो रेडी हैं। राइट राइट। और एक बात है सर, थोड़ा पहले मैं बस अपने फीडबैक दें थोड़े बहुत। आप लोग इंटरेस्टेड है, आप लोग खरीदेंगे 2,500 रुपये में, अगर आप क्लास 10th में है या क्लास 1 में 2 में किसी भी स्टैंडर्ड में, क्लास नहीं नहीं 12 में देखो, या डिपेंड कंपटीशन में करता है कि प्रिपरेशन ना कर रहे हैं। जिसको वो जरूरत है वो तो खरीद ही लेगा, 2,500 क्या 2.5 लाख में भी खरीदेगा, मरता हुआ आदमी करोड़ों भी देता है। अभी कोविड में कितना सारा पैसा गया और आदमी भी गया साथ में। तो पैसा का तो बात ही नहीं है, तुम्हारा एक्चुअल प्रोडक्ट का ही बात है आपका एक्चुअल, जवाब नहीं पैसा तो ऊपर नीचे करते रहोगे, हाँ फ्री में भी लेने वाले लोग होने चाहिए। वो भी नहीं मिलते आजकल, राइट राइट उनको भी पैसा देना पड़ता है कि थोड़ा यूज करके बताओ। राइट राइट। ओके, तो सर हमारे साथ विनीत चिरानिया सर है, एक्चुअली ये सीए है, इनका हाँ, सीए फॉर्म है। हेलो 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 विनीत जी, जब कमल हेलो हो गया विनीत सर, कमेंट हाँ इंदर, कैसे हैं सर? बस बढ़िया हूँ। विशाल सर से मिलिए। हाय विशाल जी। हेलो हेलो, आपका क्या कमेंट है? इनफैक्ट फाइनेंशियल भी सिखा सकते हो ये दोहे के रूप में, फाइनेंशियल स्कूल में सिखाता नहीं है कोई, कैसे पैसा बचाना चाहिए, कैसे पैसे को यूज करना चाहिए, बहुत इंसान बहुत है लेट लेकिन सीखता है और फिर भी मैंने नहीं इंदर सीखता को भी बोला था, है। मैंने इंदर को बोला था इसको तुम नेट या किसी से कनेक्ट करो, सिर्फ लोडेड से चलेगा नहीं, सर कर दिया, कनेक्ट कर दिया नेट से। क्योंकि आज के समय में देखिए एलेक्सा है, गूगल है। हाँ, आपके ठीक है, बोलने फिर के भी वो बाद सर मैंने कैरावान नेट से चल रहा है कनेक्ट ना, कर दिया। 10,000 सॉन्ग, पुराने सॉन्ग्स तो अवेलेबल है ही। लेकिन ये तो सर ऐसा नहीं है, फ्लॉप हो चुका है सर, फ्लॉप और पूरी हिट तो तरीके से फ्लॉप हो एक चुका है। सब्जेक्टिव चीज है ना, एक भी बिका तो नहीं, कुछ अपडेट्स हो कुछ हो तो नेट पे तो होना जरूरी है, कोर्स चेंजेस है, थोड़ा सा भी चेंज होता है तो नेट तो। हाँ वही वही। करेक्ट दिया। ऐसा चीज सोचो, वो सब्जेक्ट सोचो अगले 40 साल सेम रहे, वोकैबुलरी फॉर एग्जांपल, डिक्शनरी वही रहेगा, राइट। ठीक है, चेंज नहीं होगा। पिछले 50 साल तो सर एनईपी भी चेंज नहीं और कर एक चीज पाएगा। है सर, टेक्स्ट टू हेलो हेलो सर, इसका ऑलरेडी टेक्स्ट टू स्पीच भी इंस्टॉल कर रखा है। मतलब एक्चुअली जो डेटा विकिपीडिया से लिया जाता है, तो जरूरत नहीं है वो मतलब विकिपीडिया से डेटा लिया जाए, सारा डेटा कॉपी पेस्ट कर दो, किसी को रिकॉर्ड करने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी रोबोट बोलते रहेगा, मतलब लर्निंग मशीन बोलते रहेगा। बट हम लोग इसलिए कर रहे हैं
उसको अटेंशन ले सके स्टूडेंट का। अभी इसलिए थोड़ा मतलब कि स्टार्टिंग लेवल थोड़ा ज़्यादा इसको बेटर क्वालिटी दे सके, इसलिए अभी हम लोग रिकॉर्ड करें। फ्यूचर में रिकॉर्डिंग भी नहीं करेंगे, सारे डेटा नेट पे अवेलेबल है, कॉपी इसीलिए एंड मैं बोल रहा हूँ ना, पेस्ट, जो कॉपी एंड रिकॉर्डिंग्स पेस्ट, वगैरह में दैट्स इट। वो टाइम लगा रहे हो ना, होगा। उसका फीडबैक लेते रहो। हम्म। सॉरी, इधर थोड़ा राइट पावर राइट। चला गया, बट थैंक्स टू बैटरी बैकअप। wants to say something, please. सही है। मैम आप कुछ फीडबैक दीजिए। कमल मैम, आप भी कुछ बोलने वाली थी। मेरा एक सवाल था, मेरा एक छोटा सा सवाल था। श्योर सर, श्योर। बोलिए बोलिए बोलिए। मेरा एक परमिशन लेने के सवाल चक्कर में छोटा ना सा था कि बहुत टाइम चला जाएगा। डायरेक्ट अटैक। हमें और बहुत सारे ऐसे सर आपकी बहुत सारे वॉइस नहीं आ रही है। हाँ, मेरा एक बहुत सवाल सारे ये था ऐसे कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। हेलो, हाँ, वॉइस बहुत में सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। आ रही हाँ, है, मेरी आवाज आ रही है? मैं ऑडिबल? जी जी बिल्कुल आ रही है, यू आर ऑडिबल ऑडिबल। ऑडिबल। हाँ, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ हमें जहाँ से हम कोर्स परचेज कर सकते हैं, तो वो इससे डिफरेंट कैसे है? अच्छा, जमीन और आसमान में जितना फर्क होता है उतना आपका जो डिफरेंस है। स्टार्टअप है वो हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, क्या एक्चुअली छोटा खरीदने की एक्सप्लेनेशन क्या प्लीज फॉर जरूरत है? मीडिया। हाँ, आप जो बोल रहे हैं वो खरीदने की क्या जरूरत है, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे नहीं है तो विकीपीडिया पे मिल ही जाएगा, विकीपीडिया पे नहीं मिला तो बुक्स में मिल ही जाएगा, तो उसको खरीदने की क्या जरूरत है? लेकिन सीन ये है ना कि वो लोग पढ़ते कहाँ हैं। हेलो, ऊपर के दो नहीं, चार सही बात है। लाइन पढ़े अरे हाँ, क्या? मैं इसने आपने समझ तोता रहा हूँ, बनाया समझ रहा है हूँ। एक, हाँ, और कुछ नहीं। तो ये एक्चुअली तोता। क्या है ना कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये खुद आपको पढ़ाएगा, खुद आपको रटाएगा। समझ रहे हैं? करेक्ट करेक्ट। हाँ। पेरेंट्स पेरेंट्स ओके, ओके, पेरेंट्स ओके। जैसा बोलते हैं, तोता से क्योंकि बेटर वर्ड है ये। लेकिन मुझे कुछ हाँ, एक्स्ट्रा अगर नॉलेज की जरूरत होती है तो मैं यूडीमी से जाके वो कोर्स देख लेता हूँ, लेकिन खरीदता नहीं हूँ। वो सेम ओके, फ्रेज में टॉरेंट से फ्री में डाउनलोड कर लेता हूँ, तो वो मेरे लिए हेल्पफुल हो जाता है। राइट राइट राइट। हाँ, तो वो एक्चुअली तो आप अनअकैडमी के पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि शायद आपको यूट्यूब पे वो मिला नहीं होगा, या आपको स्पेशली जो आपको चाहिए, आपका टाइम वेस्ट ना हो, वो आपको यूडीमी आई थिंक दे रहा है, राइट? हेलो। हाँ करेक्ट करेक्ट। हाँ, बट मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि हाँ जब हाँ, सही कोर्स बात। भी ले लिया, जब आपको फ्री में वो कोर्स भी मिल गया, तो आप उसको पढ़ के इतनी टाइम रह रहे हो। जब आप उसको नहीं पढ़ पा रहे हो तब आपको लर्निंग मशीन की याद आएगी। एक काश की लर्निंग मशीन हो नहीं तो मेरा टाइम वेस्ट ना हो, और मैं मतलब पढ़ता रहूँ रेगुलर बेसिस पे, थोड़ी थोड़ी सही मेरी स्टडी चलती रहे, हाँ, लाइक। आप ये ऐसा बोलते हैं, लेकिन अब अगर इतना कुछ हेलो, आपकी वॉइस हम्म। ब्रेक हो रही है सर। नहीं नहीं, हाँ, ये आप आई ऐसा थिंक बोल शायद सकते हैं, लेकिन अगर तुम कोई ये आदमी बोलना चाह खोज रहे हो के कि कोई चीज अगर निकालेगा, ये बात आ रही है? हाँ, अभी आ आ रही रही है है। कुछ। हाँ, बोलिए। हाँ, बोलिए सर। हाँ, नहीं बोल रहे थे, ठीक है। नहीं, मैं ये बोल रहा था ना कि देखो, जो टारगेट आदमी मार्केट इनका जो होगा ना, खोज वो आलसी लोग होंगे थोड़ा सा, जो खुद से पढ़ नहीं सकते, हाँ, या उनके सर, पेरेंट्स पढ़ा नहीं सर सही है। एक बार सर इनका एक बार इंटरेस्टिंग सवाल है सर, इनको बोलने दीजिए ना, बोलिए सर। हाँ, बोलिए सर। डिस्कनेक्ट हो गए डिस्कनेक्ट हो गया शायद। क्या? आप बोलिए सर, आप अमित बोलिए। मलिक वांट्स टू से समथिंग, ठीक है, चलो। Yeah, सर hi. सर आ गए, सर आ गए, साथ सर आ गए। हाँ, हेलो। ठीक है, अमित मलिक, देन आशाद कैन ऐड, यस अमित। हाँ, ओके, मेरा सवाल जो था, मेरा एक्सप्रेशन वो विशाल सर ने बता दिया कि जो लोग थोड़ा सा मतलब टाइम जिनके पास कम है या कम टाइम दे पाते हैं पढ़ने पर, उनपे ये ज्यादा इफेक्टिव होगा आपका जो स्टार्टअप है ना? क्योंकि अगर मतलब अगर ढूंढ के अगर कोई आदमी कोई कोर्स निकाल रहा है या कोई अगर टेक्निकल ई बुक अगर निकाल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो पढ़ने के लिए ही निकाल रहा है। मैं ओके, अपने ओके। पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज बोल रहा नहीं था, नहीं लेकिन नहीं मुझे नहीं, अभी समझ में आ गया। अभी तक अगर मैं बोलूँ कि सबसे बेस्ट सवाल क्या था, तो वो आपका सवाल था, और इसका सीरियसली मैं आंसर देना चाहूंगा। आपने एकदम सही सवाल पूछा है। देखिए, सीन क्या है ना कि आप अभी कौन सा कोर्स पढ़ाई कर रहे हैं, पहले ये बताइए। आपने एग्जाम्पल के लिए कौन सा नहीं, कोर्स मैं लिया पढ़ाई नहीं है? कर रहा, मैं मतलब सपोज आपने नहीं, तो कौन आई सा थिंक कोर्स लिया है? इंदर, किस चीज बेसिकली के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? कोई ऐसा कुछ हो रहा नहीं, है मैंने कि कोई सारे लोग नहीं लेंगे ना, नहीं जो खुद अच्छा, से ठीक है। बहुत मोटिवेटेड हैं, वो लोग तो कर लेंगे राइट। अपना काम। सर देखिए, जो मैं बताता हूँ। मोटिवेटेड नहीं है, उनके लिए है सर ये। सर मैं आपको एक जेन्युइन चीज बताता हूँ। आप कोई सा भी ओके, कोर्स ओके, उठा लीजिए, ओके। ठीक है? सपोज आप एसएससी का ही कोई कोर्स उठा लीजिए, ठीक है? या फिर चलिए एसएससी का एग्जांपल ले लेते हैं। कोर्स में क्या करवाते हैं ना, जो भी टीचर रहते हैं वो मैक्सिमम टाइम मैथ ही करवाते हैं।
मैथ की 5 क्लासेस रहेंगी तो अदर सब्जेक्ट की एक एक क्लासेस रहेंगी, और उसमें ऊपर से फॉलो थ्रो कर लेते हैं कि घर पे जाके पढ़ लेना और रट लेना। और मैथ्स में क्या है, होमवर्क्स मिलते रहते हैं, टाइम मिलता कहाँ है, ठीक है। सिलेबस इतना बड़ा है कि एक्चुअल में टाइम उतना नहीं मिलता। और दूसरी चीज ये है ना कि अगर हमारी कोई नॉर्मल बुक्स भी है ना हमारे पास, तो वो हम 30% उसमें ऐसी डेटा है जो हम कभी पढ़ते ही नहीं है, 30% तो ऊपर ऊपर से निकल जाती है, और फिर बचा जो 70% से उसमें से हम लोग 30 से 40% तक कंज्यूम कर पाते हैं। लर्निंग मशीन में क्या है, ये जितना बोलेगा मैक्सिमम आप कंज्यूम ही करेंगे इसमें। जो ये जो 30% जो आपका पढ़ ही नहीं पाते कभी किसी बुक से, यहाँ पे वो 90% तक है। 90% तक आप सब कुछ एटलीस्ट पढ़ पाएंगे, और फिर उसमें से कंज्यूम कितना करते हैं वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। होपफुली जितना आप एक बुक से कंज्यूम कर सकते हैं उससे ज्यादा ही आपको लर्निंग मशीन से कंज्यूमशन मिलेगा। नहीं नहीं सही बात है, और बट फिर भी सारे लोग नहीं लेंगे इसको। हाँ इसको वही लोग ऑफकोर्स सारे लेंगे लोग नहीं जो लेंगे। थोड़ा आलसी होंगे, या उनके पेरेंट्स को लगेगा कि मेरा बच्चा आलसी है, इसको थोड़ा सा लटका दो इसके गला में हेडफोन। एग्जैक्टली राइट या। तो पेरेंट्स ही तो तुम्हारे आपने सारे क्वालिटी चेक्स कर लिए सिलेबस के? लाइक मैम क्योंकि मतलब कि कुछ कोई आंसर्स कुछ मतलब एक क्वेश्चन का कुछ और आंसर ना हो या मिसमैच ना हो गया हो, उस तरह से वो सब कर लिया आपने? गलत ना पढ़ा देना कभी, नहीं तो एक झटके में हाँ पूरा क्योंकि वो तो प्रोडक्ट फिर फेंक दिया बिल्कुल ही जाएगा। बैठ जाएगा। हाँ बिल्कुल बैठ जाएगा प्रोडक्ट, क्योंकि ये मतलब नीश क्लाइंटल के लिए है, मतलब नीश मैम देखिए थोड़े। ऐसी गलती तो होती रहती है। वैसे हमारे जो एक्सपीरियंस टीचर है वो लोग भी कभी कभी गलती रहते हैं, गलती करते रहते हैं, गलत आंसर निकाल देते हैं। छोटी बड़ी चीजें तो होती रहती है, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं कि जो एक्यूरेसी रेट है वो हाईली दिया जाए। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली वो टीचर के साथ बात भी कर सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे कि ये आंसर गलत है या कुछ है, तो डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। 24/7 आई हेल्पलाइन थिंक ये नंबर है, उनकी रखोगे ना चेकिंग तो रहेगी। तुम्हारा अलग एक बन जाएगा कि डाउट सॉल्विंग सेशन 1-to-1 या एग्जैक्टली ग्रुप हम रख रहे हैं ऑलरेडी। और 24/7 हेल्पलाइन नंबर है। लाइक अगर आपका सिस्टम बंद हो गया, शट डाउन हो गया, काम नहीं कर रहा है, तुरंत सर्विस सेंटर विजिट करिए, क्योंकि हम लोग मार्जिन इतनी कम रख रहे हैं कि आपको सर्विस सेंटर आना पड़ेगा। और जो जो महंगा वाला जो प्रोडक्ट, एक्चुअली 3-4 टाइप के अलग अलग प्रोडक्ट्स है, जो महंगे वाले कर रहे हैं उसमें होम सर्विस भी दे रहे हैं, लेकिन ट्राई करेंगे होम सर्विस नहीं रखने की, क्योंकि उसमें स्केल अप नहीं कर पाएंगे बिजनेस को, वेस्ट बंगाल में ही रह जाएंगे, ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आपको सर्विस सेंटर आना पड़ेगा अगर वैसा कुछ हो जाता है तो। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो 24/7 हेल्पलाइन है, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको इमीडिएटली मिल जाएगी। इवन आपको ट्यूशन, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ट्यूशन टीचर की भी जरूरत ना पड़े, हालांकि जरूरत पड़ेगी, लोग लेंगे क्योंकि फैशन ट्रेंड बन चुका है, बट ट्राई करेंगे कि इन फ्यूचर जरूरत ना पड़े ट्यूशन टीचर की। इसको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, और टीचर को भी रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे कि एक बेस्ट टीचर दिया जा सके, और एकदम वेरी इकोनॉमिकली अफोर्डेबल। मतलब एम यही है, हमारे गोल्स यही है। सही है, ठीक ही है। नहीं ठीक है, सब कुछ करो। आई थिंक इसको किसी एक सब्जेक्ट से फुल फ्लेजेड लॉन्च करो, उसके बाद हाँ फीडबैक लो, एंड फिर हाँ उस और सर हिसाब से। आपने जो एक चीज बताया वोकेबलरी वाला रख सकते हैं। हाँ और एक मेरे पास ऐसा ही आइडिया था कि इसको लाइक फैक्ट टाइप में यूज कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट। मेरे एक फ्रेंड ने आइडिया दिया कि इंदर भाई इसको आप बस मतलब फैमिली में सबके लिए, बच्चे से लेके दादा दादी तक सबके लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट इंडिया के बारे में इंटरेस्टिंग, और इसको आप 2500 रुपये में सेल करो, पहले स्टार्ट करके इसको सेल करो इसी चीज में, तो लोग केबीसी लेंगे, क्यों केबीसी नहीं बना लेंगे। दो। लाइक बड़े बड़े जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अच्छी अच्छी बुक कौन बने ये करोड़पति भी सब देखते हैं राइट। उसको। लेकिन हो जाएगी नहीं इमेज। हाँ हाँ हाँ। तो ये भी एक था, लेकिन मैं चाह रहा था कि इसको एटलीस्ट इसका इमेज जो है वो एजुकेशन लर्निंग मशीन से रिलेटेड रखता, हाँ ताकि इन अरे फ्यूचर वो अभी क्विज ही है हमारे। ना एक तरह का, 4 ऑप्शन है, लोग रिकॉल करेंगे उसको। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। सॉरी, नहीं मैं बोल रहा था कि हेलो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर होगा हेलो तो दैट विल आल्सो हेल्प टू रिकॉल लॉट ऑफ थिंग्स। उसमें पे ऑप्शन भी रहेगा ना 4, राइट। तो सोच सकते हो इस पे। मतलब कि आप सच में बोल रहे हैं कि केबीसी एक बार लॉन्च कर दूं? केबीसी जैसा मैं फॉर्मेट बोल रहा हूँ कि 4 ऑप्शन रहेगा ना, तो वो 1 मिनट के लिए या 10 सेकंड के लिए सोचेगा, और हाँ उसके बाद हाँ जवाब देगा, तो वो चीज याद होने लगेगा उसको। हाँ ये तो भी नेवर एंडिंग हाँ टॉपिक है। तो फिक्स्ड होके बोरिंग नहीं हो जाएगा केबीसी वाला क्योंकि उतने ही क्वेश्चंस उसी का, वो तो फिक्स्ड रहेगा। तो नहीं अब केबीसी का तो हर एपिसोड नया रहता है, तो उसमें कितने क्वेश्चंस आप नहीं डाल देंगे? नहीं तो जब मैंने ऑफ कर दिया तो वो रैंडमली पूछेगा, जब वो रैंडमली पूछेगा तो
मतलब जब सारे क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे तब रीस्टार्ट शुरू होएगा? वैसे मतलब ही कि कुछ देखना होगा। आई थिंक एक सिस्टम में तो लाखों क्वेश्चन जा सकते हैं। आई मीन जीके हो गया, ये राइट, एक हाँ बुक हो गया, एंड कैन बी इट कैन हैव अ कैसेट काइंड ऑफ थिंग कि एक लगाया फिर दूसरा वीडियो गेम जैसा। वो आप जनरल उसके हिसाब से करेक्ट, सेग्रीगेट भी करोगे ना सब्जेक्ट के हिसाब से? सिलेबस हो सकता है हर मॉड्यूल का, कुछ कंप्लीट हो गया तो अच्छी चीज है। मतलब जीके में भी 1000 सब्जेक्ट है। राइट राइट। अच्छा मैम, आप टीचर है किसी स्कूल में या फिर कोई है आपके घर से जो पढ़ाई करते हैं किसी नहीं, मैं स्टैंडर्ड में? मेरे बच्चे हैं, एक कौन से सेकंड में स्टैंडर्ड में? और एक 12th में। 12th में, ओके। नहीं, तो क्या 12th आप में नहीं है, सॉरी, 12 इयर्स की है, एक 7 इयर्स का है। कौन से तो स्टैंडर्ड में? सेकंड एंड 7th। 7th। तो आप मुझे बताइए कि क्या आप इसको लेना पसंद करेंगे? देखो आपको हमारे मैं घर डेमो में, दिखाऊंगा, पहले लाइव डेमो दिखाऊंगा कि कैसे काम कर रहा है, बच्चे ठीक है, कैसे फिर यूज आप कर। जब दिखाएंगे तो फिर आगे बात करते हैं, क्योंकि अभी तो मतलब हमारे घर में टीवी का इतना चलता नहीं है, तो फिर बच्चे बुक्स पढ़ लेते हैं, तो दिक्कत नहीं आ रही है मुझे। तो जिन घरों में टीवी बहुत लगता है या फिर वो फोन शोन पे लगे रहते हैं बच्चे, तो उन घरों में ज्यादा परेशानी आएगी, तो वो जरूर ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट कि क्या ओके कंटेंट है, क्या है। ओके मैम। टारगेट तो वीक बच्चों को करो। वीक राइट बच्चों राइट का हाँ ज्यादा परेशानी होता है लोगों को। हाँ। इंटेलिजेंट लोग को छोड़ दो, वो लोग खुद से अपना सेल्फ ईगो में ही पढ़ लेता है। नहीं, और जिनके पेरेंट्स भी पढ़ाते हैं वो भी नहीं लेंगे, वो बोलेंगे किताब ज्यादा अच्छे से रजिस्टर हो। ओके। तो मैम मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, जो आपके बच्चे क्लास 7th में है वो कितनी देर बुक्स पढ़ती है एक दिन में ऑन एन वो एवरेज? तो मेरे बच्चे तो शौकिया है, मतलब वो जो छोटा वाला है, तो अगर वो फ्री बैठता है तो दिन में अपनी स्टोरी बुक्स उठा के 2-3 घंटे तो पढ़ ही लेता है। 2-3 घंटे? और बड़ी वाली, हाँ, बड़ी वाली भी अपनी पूरी एक नॉवल 2 घंटे में, 3 घंटे में खत्म कर देती है, नैन्सी ड्रू जैसी जो कर नॉवल में उसने सारी हैरी पॉटर पढ़ी। तो फिर मतलब मेरे बच्चों को मैंने पढ़ने की, रीडिंग की आदत डाली हुई है, पर जनरली आजकल बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ओके तो मैम, जो वो बच्चे लोग पढ़ते हैं मैं एक बार उन्हीं का हाँ, एग्जांपल लेना चाहूंगा ताकि मैं चाहूंगा ना इसको टफ से टफ बनाया जा सके। जो इजी है, जहाँ यूजफुल है वहां तो यूज हो ही जाएगा, लेकिन जहाँ पे कम हाँ, पॉसिबिलिटीज है मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ वहां पे कुछ पॉसिबिलिटीज ढूंढूं। तो 4 घंटे पढ़ाई कर लेती है नोबल, राइट? नहीं देखो, क्या मैं बता रहा हूँ नहीं, तुम्हें। पढ़ाई देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर पढ़ाई की बात है तो उतना उसका एग्जाम से पहले पूरा कोर्स खत्म हुआ होता है, तो वो एग्जाम के दिनों में थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ रह जाता तो रह जाता, छोटे वाला का भी खत्म हुआ होता है कोर्स। ओके तो ओके वो ओके। इसीलिए मतलब मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए मुझे इतना यूजफुल नहीं लगा, पर हाँ, कि अगर हो सकता है जनरल नॉलेज की कुछ क्वेश्चंस हो, मतलब इंटरेस्टिंग से, मतलब या फेमस पर्सनालिटीज के बारे में 2-2 लाइनें पढ़ रहा है, तो मैं सोच सकती हूँ लेने के लिए, मतलब इट इज अ गुड थिंग। ओके पर मैम। वही है ना, मतलब आपको अलग अलग वेरिएंट्स होने चाहिए कि ये जनरल नॉलेज का है, ये कम्युनिकेशन का है, ये आपका मैथ्स का है। तो जैसे ओके अभी तो आपने 2500 का एक सिस्टम डाला है, 2500 में आप सब कुछ दे रहे हो, तो आप राइट बेसिक मॉडल 2500 राइट। का डालो, उस पे एड ऑन्स लगाते जाओ कि हाँ ये इंग्लिश का एड ऑन ले लो 500 रुपए और, या फिर हाँ, ऑलरेडी एड कम्युनिकेशन। ऑन है मैम, 100 रुपीज का है इंग्लिश का। या हाँ, मतलब वो जैसे जो भी आपका मतलब प्राइसिंग आपने हाँ, की होगी, मैंने तो कुछ रिसर्च की नहीं प्राइसिंग राइट के राइट। ऊपर, तो उस तरह से ऐड ऑन करते जाओ। वीक ओके स्टूडेंट मैम, मैं थोड़ा डिटेल में जिनके जाऊँ अगर पेरेंट्स कुछ? भी वीक हैं, हाँ वो हाँ। तुम्हारा सबसे इजी टारगेट मार्केट होगा। ओके ओके। तो सर स्कूल से स्टार्ट किया जाए, फिर स्कूल में जाके डायरेक्टली पेरेंट हाँ, मीटिंग या फिर जूम स्कूल से जो भी? स्कूल में या कहीं से भी, हाँ जो देखिए, भी। मैं, हाँ, स्कूल एक अच्छा आइडिया है, मतलब टायर 2 टायर 3 सिटीज के जो स्कूल है मेरे ख्याल से तो वो अच्छा आइडिया है। या और मतलब आप जैसे स्कूल में एक लकी ड्रॉ निकाल दीजिए, ओके। उसमें से 2 बच्चों को फ्री दे दो, राइट फिर राइट 2 बच्चे उनका देखा देखी उनको लगे कि हमें भी चाहिए, राइट राइट राइट। तो कुछ इस तरह से करके देख लीजिए, मतलब थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, आप कैसे इसको एडवर्टाइज करते हैं, कैसे मार्केट करते हैं अपने प्रोडक्ट को। ओके, तो Like मेनली तो Vishal भैया, मार्केटिंग। yeah, Ender, I just want to say, like विशाल भैया ने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज विनर को फ्री में दे दिया था सिंगापुर का ट्रिप, फर्स्ट विनर को।
एंड सेकंड थर्ड एंड आई डिडंट वांट, तो मेरा भी बहुत मन था सिंगापुर जाने का। ओके लाइक दैट ओनली, उस मॉडल को रखो आप। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, ये तो रखना ही पड़ेगा विशाल साथ भैया, में। यू नो, यू रिमेम्बर? यस यस आई रिमेम्बर। नहीं वो है ही ना, वो मिसिंग आउट हो गया ना वो। अब लोग आए ना, एटलीस्ट उसको मिस भी किया तो भी प्रोडक्ट हाँ, हिट हो गया ना। सही है, सही है। या भैया। करेक्ट, ठीक है, चलो वी आर ओके आउट ऑफ मैम। टाइम और मैम बात करते हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन टू मैम। हेलो नहीं तो मैम। देखो, जबरदस्ती नहीं भेज सकते तुम इसको किसी को। मेरे को एक क्वेश्चन। अच्छा, ओके ओके, आज 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 बंद करते हैं, आज काफी हो गया, काफी हो गया, इनफ है। हाँ, नहीं देखो सब लोग नहीं लेगा, लेकिन तुम्हें वही लोग को देखना होगा ना हाँ जो परेशान है अपने बच्चे के लिए, वो तुरंत ले लेंगे हाँ कि हाँ बोले चलो हाँ ट्राई कर लेते हैं, 2,500 का चीज है या जो भी है। हाँ, मतलब परेशान पेरेंट्स को पकड़ो, तो उनको मत पकड़ो जो राइट बिंदास राइट राइट। टाइप है, उनको फर्क नहीं पड़ता हाँ बच्चे क्या कर रहे हैं हाँ, ज्यादा। और एक चीज, कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स का भी काम करता ही है। हेलो विशाल सर, बोलो जैसे बोलो, हमारे पुराने पेरेंट्स थे, वो लोरी सुनाते थे बच्चों को, कहानियां सुनाते थे। आजकल वही के बना दो, पेरेंट्स इनफैक्ट वही बना दो कि लोरी वो लोरी तो है ही इसमें, सुन के सो वो जाए। तो है ही, मोटिवेशन वगैरह, स्टोरी वगैरह तो है ही इसमें। लाइक नहीं तो पढ़ाई करो, वही, पढ़ाई तुम्हारा करो। कंटेंट इज द किंग यहाँ पे। कंटेंट बना हम्म। कैसा और कैसे अडेप्ट हो रहा है पर्सन टू पर्सन। देखो, आवाज का भी बहुत महत्व है। मतलब अगर आप किसी टीचर को लेते हैं तो उसकी हाँ आवाज क्लियर होनी चाहिए। आप मतलब काफी वीडियोस हैं यूट्यूब में, जब मैं देखती हूँ और मुझे आवाज समझ नहीं आ रही होती ठीक से, या मतलब क्लैरिटी नहीं है वीडियो में, तो मैं नहीं सुनती, मैं दूसरा सुनती हूँ फिर। राइट राइट तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो वैसे भी सिर्फ ऑडियो है। तो राइट बहुत राइट। ध्यान से, एकदम क्लियर हो, अच्छी ओके। आवाज हो, और मतलब ऑडिबल, मतलब ऊंची ऊंची नीची तो हो ही जाती है एडजस्ट, राइट राइट। पर कई बार बैकग्राउंड नॉइज आता है थोड़ा थोड़ा, वो सब चीजें, क्लैरिटी सब चेक करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बेस्ट टीचर्स इफ पॉसिबल, इंडिया के बेस्ट टीचर और दुनिया के बेस्ट राइट टीचर राइट। अगर हाँ, उससे इसके लिए मिला तो बायजूस के साथ टाई अप करना पड़ेगा इन फ्यूचर। बायजूस का आई डोंट नो उनका बेस्ट टीचर है कि नहीं, बट यू कैन एटलीस्ट टारगेट द फिर बेस्ट बोलते टीचर्स तो ऑफ हैं। इंडिया एटलीस्ट। अब हाँ बोलने से नहीं, हाँ, मैं बोलने ट्राई से क्या होता करूँगा। है, बोलने को तो सब लोग बोलेगा। एनीवे सही है, तो सही है। वही है, मतलब बेस्ट टीचर्स जो होंगे ना इंडिया लेवल के, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, ऑब्वियसली दे विल हैव ऑल द हाँ हाँ। क्वालिटीज, जितना भी कमल राइट मैम ने राइट। बोला या जो भी बोला, फिर बाकी तो रिकॉर्डिंग का सेटिंग है, हाँ हाँ। तो थोड़ा सा राइट राइट। बहुत हाँ सारी चीज़ों हाँ। पे डिपेंडेंट है। टेक्नोलॉजी एक चीज़ है, फिर जो कंटेंट बन रहा है वो है, फिर उसके बाद उसको मार्केट वो करना, है, ये करना, वो हाँ, फिर करना, सर्विस वगैरह दिल्ली है, दूर है अभी। मैनेजमेंट है। बहुत दूर है। ठीक है, चलो, ओके ओके, आई थिंक वील सही है, एंड सही है। द चलो, बोल ऑल द बेस्ट इंदर। या ऑल द थैंक बेस्ट। यू सो मच मैम। ओके चलो, ओके, लेट्स एंड द थैंक यू सो सेशन। थैंक यू मच। वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन।